A very good afternoon. Uh, Yesterday, we have discussed the introductory portion of energy science and engineering. Already, we have discussed that what is the definition of energy. Actually, energy may be defined as a capacity to perform work. Okay. Now, today we will focus the term energy basically. And what is the energy? Energy may have the following components. Okay, may have the following components or may have the following types, and there may have some types such as the kinetic energy, potential energy, thermal energy, chemical energy, electromagnetic energy. uh, there may have the various type of energy. Okay, in those energy we will discuss one by one to cover all the topics related to energy. एंड बिकॉज अगर हम ये कहें कि एनर्जी का सिग्निफिकेंस होता क्या है एक्चुअली में एनर्जी बेसिकली आपके अगर घर में होम अप्लायंसेज हैं, फ्रिज है, एसी है, पंखे हैं, तो उसको ऑपरेट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ लो ग्रेड एनर्जी होती है, कुछ हाई ग्रेड एनर्जी होती है। तो बेसिकली अगर हम टर्म की बात करें एनर्जी or in the form of low grade energy as well as high grade energy. Actually what happened, if you talk about the low grade energy, then this term are constituted by three terms. First one is low, then grade energy. Okay, low grade energy is that type of energy which not converted into output by its complete value. Suppose that if you take the example for low grade energy, then the best example of low grade energy, that is heat. Okay, uh, I think you are very familiar with the term heat. And what is the definition of heat? If I ask you that what is the definition of heat? Heat is the energy. You will say yes, this is energy. But before some years, this is not clear that heat is a type of energy. Okay. तो हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। जब हम एनर्जी को हीट को एनर्जी के टर्म में नहीं एज्यूम करते थे, तो उस केस में क्या हुआ कि हम इसको लो ग्रेड एनर्जी या हाई ग्रेड एनर्जी ये सारे के कैटेगरी में डालते ही नहीं थे। आई थिंक मैं आपको बताया हूँ कि हीट जो है लो ग्रेड एनर्जी है, दिस इज द डेफिनेट। बट हीट इज एनर्जी, इससे पहले की कहानी कुछ मैं बताना चाहता हूँ। तो हीट एज वेल एज मैकेनिकल वर्क का जो इक्विवेलेंसी है उसको मैं बताना चाहता हूँ। ओके, तो पहले क्या हुआ देखिएगा। पहले ये था, इन द वे टू डिफाइन हीट, एक्चुअली इनिशियली we assume the first point that the heat is not the form of energy. Here from on point number one, you can see a sentence is written over here, heat is not the form of energy. Okay, and the second assumption is carried out for the term
heat, it is responsible for rising the temperature, rising the temperature. These were the very conventional assumptions for that time, when we were not accept that heat is a form of energy. And if we assume before some years that heat is not a type of energy, then basically what are the assumptions accept एक्सेप्ट कि वो हीट जो है एनर्जी का टाइप नहीं है, तो आखिर में है क्या? तो वो 2 पॉइंट से था, हीट इज नॉट द टाइप ऑफ एनर्जी. सेकेंड वन इज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग द टेम्परेचर. देन व्हाट हैपन, सी, इसका मानना ये था कि अगर कभी भी टेम्परेचर राइज होता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मेन जो टर्म है, टर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू राइजिंग द टेम्परेचर, एंड द टर्म इज दिस वन, हीट. बट देखा क्या गया कि वर्क परफॉर्म करने पे, इफ वी आर परफॉर्मिंग सम वर्क, देन इन दैट केस क्या होता था, टेम्परेचर उस केस में भी क्या होता था, बढ़ता था. तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, तो हम ये मान लिए कि ये केवल नहीं कहा जा सकता था कि एक हीट ही ऐसा है जो कि टेम्परेचर को राइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक, तो फिर वहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि एक्चुअली क्या होता है, टेम्परेचर राइज करने के लिए कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं. तो तभी से एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना, that is W is equal to JQ. I think you all are very familiar with the term J, and what is J? J is the mechanical equivalence. Okay. तो क्या हुआ, जो मॉडर्न एजम्पशन है उसमें जो चीज़ें अपडेट हुई, वो अपडेट क्या हुई कि जो ये नॉट वाला टर्म है ये कैंसिल आउट हो गया. ठीक, तो फिर हम क्या कहने लगे कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो फाइनली हम कहाँ पे पहुँच गए कि लास्ट में क्या भी कह रहे हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. नाउ वी कैन टॉक अबाउट द लो ग्रेड एनर्जी एज वेल एज हाई ग्रेड एनर्जी. एक्चुअली बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक क्या था कि मैंने ये बताया कि हीट जो है लो ग्रेड एनर्जी है. फिर क्या हुआ, हम ये बताना भी जरूरी समझे कि इसको पहले जो कन्वेंशनली इसको एज्यूम नहीं किया जाता था कि ये एनर्जी है. इसको क्या कहा जाता था, दिस इज द रीजन ओनली, दिस इज द रीजन एंड such type of region which is carried out a platform to raise the temperature. But what happened if we were performing some work, then that work were also converting into heat. Then the very obvious point came in existence, that is the first point, that the heat is a form of energy. Okay. तो फिर क्या हुआ, वर्क डन और हीट में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ. उसका रिलेशन क्या होता है, दैट इज द W इज इक्वल टू JQ, वेयर J इज द मैकेनिकल equivalence and its numerical value is 4.18. Okay, now we want to highlight the two terms, what is the low grade energy and what is the high grade energy. Actually
The low grade energy is that type of energy which cannot converted its its full part from input to the output. Suppose that एनर्जी है E, क्या है E, and this energy is supplied at input. This energy is supplied at input, and here is a system which is connected over here, and this will convert this input into some output. And suppose that this capital E is the input, and at output we will get E minus E dash. It means total energy could not convert it into output. That's why this type of energy is known as low grade energy, and vice versa. The same thing will be for the high grade energy, because a grade energy comes under the category of high section, and that grade energy is known as high grade energy. That's why the total capital E, if total capital E is converting into total capital E as an output, if capital E is the output and capital E is the input, both are the same at least, then this may come under the category of high grade energy. Okay. Now I want to elaborate the classification of mechanical energy. If we differentiate the term mechanical energy, the mechanical energy may have the two types. Already we discussed, but in this session I will repeat, and then if any queries from your side, then you can ask me. There may have some types for mechanical energy. Mechanical energy. What is the term energy? Energy may be defined as the capacity to perform any work. Okay. If some work performed mechanically, then that type of energy is known as mechanical energy. Is it clear? And if the mechanical energy is a form of energy, then it means the energy came in existence by the means of mechanical terms, mechanical forces, torque, etc. Uh, Now finally, I want to tell you the types of mechanical energy. First one is kinetic energy. Second one is potential energy. Already told you that the what type of energy may come in existence to achieve our goal, to raise our standard of living. And first point is kinetic energy, and another one is potential energy. Then due to the motion, which type of energy is in existence, that type of energy is known as kinetic energy. And due to the state of motion, which type of energy is going on, that type of energy is potential energy. Okay. And in the previous lecture, we have already formulated the mechanical energy as well as kinetic energy. And kinetic energy plus potential energy gives us mechanical energy. Okay. Suppose that if you talk about
the chemical energy, thermal energy, electromagnetic energy, then we can define the chemical energy. If the energy came in existence by the means of chemical reactions, then that type of energy is known as chemical energy. If the energy takes place by the means of thermal action, then that type of energy is known as thermal energy. Okay. Actually, if I ask you, then electrical energy is the low grade energy or high grade energy? I think some of you will say the electrical energy is the low grade energy, and I think if this class is very good, then some student will say, or more than 50% student will say that the electrical energy is high grade energy. Then in this case, I want to go with the majority, because the more than 50% students have told that the electrical energy is high grade energy. Then this is the very correct answer, that is the electrical energy is high grade energy. If we ask you in which way you will define the electrical energy, then due to the potential difference, you know the current flows in certain direction, and if the potential difference exists, then definitely at that place work done exists and electrical energy exists. If you will increase the value of potential difference, then definitely you are increasing the value of work done. That means the electrical energy increases. Okay. ऐसा कि आप पहले भी पढ़ा चुके हैं, और आई थिंक कि 15-20 मिनट अभी पढ़ाते हुए हो भी रहा है। तो अगर हम लास्ट में अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा है कि एनर्जी कंजम्पशंस धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं? एक्चुअली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी सेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको 1 to 5 मिनट तक लगभग ट्रेवल कराना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, लेकिन एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है, अगर एनर्जी कंजम्पशन की हम बात करें तो ये क्या है, बढ़ ही रहा है। ठीक है, टाइम के हिसाब से एक एरो क्या लगाएं, 2 लगा दे, 3 लगा दे, एन टाइप ऑफ एरो लगा दे, जो कि क्या शो करेगा कि ये रैपिडली इंक्रीजेस, दिस वैल्यू इज रैपिडली इंक्रीजिंग, बट वाइल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बट actually this sentence you can see, energy consumption increases because of population increases. Population control is not in our hand, but many of us are not serious for the population. That's why the towns are increasing, villages are increasing, and living sections are increasing. That's why for to live, for a life, we are consuming more and more energy. What I am telling, we are consuming more and more energy. I will write some sentences point wise, and why I am writing, you will understand after some time. What I am telling, more and more energy are consuming. Okay, more and more energy are consuming. If the pictorially if we represent, then some values we will write on the abscissa, and rest of uh, those values we can write on the ordinates, and we can see a pictorial representation. Suppose that energy, if we write energy consumption on y axis,
कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 5 यूनिट्स है, ये क्या है 10 यूनिट्स, देन यूनिट्स क्या है, यूनिट्स की जगह हम गीगा जूल लिख सकते हैं, ठीक है। तो लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, गीगा जूल लिख सकते हैं, ठीक। तो फिर ये क्या हुआ 20, 30 और ये ऊपर तक जाएगा, कहाँ तक 70, 80 इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले तो हम चीज़ों को अगर बोले जैसे 2000, इन ईयर 2000, इन ईयर 2001, इन ईयर 2002, तो जैसे जैसे ईयर बढ़ता गया वैसे वैसे क्या हुआ, जो गीगा हर्ट्ज का एनर्जी कंजम्पशन ऑन द वाई एक्सिस है उसमें क्या होने लगा, वेरिएशंस आने लगा, ठीक है। उसमें क्या आने लगा, वेरिएशंस आने लगा और ऊपर की ओर बढ़ने लगा, ठीक, ऊपर की ओर बढ़ने लगा। तो if these if year is increases in forward direction, then what will happen, this value also increases, but for these values energy resources are limited, energy resources are limited, ठीक, एनर्जी रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो अब हमारे प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से अब क्या हुआ कि ये चीज़ें दिमाग में आई कि आखिर में एनर्जी रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है तो क्या भी किया जाए, ठीक। तो प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे बड़ी बात आई कि एनर्जी कंजम्पशन जो है वो हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो अब हम एनर्जी कंजम्पशन को कन्फाइन या लिमिटेड तो कर सकते हैं, बट हम ये नहीं कहेंगे कि एक घर में कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, बिकॉज एनर्जी कंज्यूम करने का सबका राइट है, क्योंकि अगर आपको लिविंग स्टैंडर्ड और सारी चीज़ें जीना है तो भाई लाइट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यूज टू हो चुके हैं। नेचुरल हरासमेंट इतना है कि बिना पंखे के आप बैठ नहीं सकते, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है, ठीक। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो ऐसा क्या किया जाए कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तब भी पर हम क्या करें कि एनर्जी कंजम्पशन को अफेक्ट ना होने दें। तो अब हम जो आपको बात बताने जा रहे हैं, एक्चुअली में वो लेक्चर का जो लास्ट में मोटिव था वो यही बताना था कि जब एनर्जी कंजम्पशन लिमिटेड हो गया, या सॉरी एनर्जी कंजम्पशन जब रैपिडली इंक्रीज कर रहा है तो हम रिसोर्सेज को कैसे मेंटेन करें। रिसोर्सेज को सबसे मेंटेन करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूज कर रहे थे, हियर आई एम राइटिंग the two term conventional and non-conventional, conventional and non-conventional, conventional and non-conventional energy resources, energy resources, okay, this term is conventional, ये लिमिटेड रिसोर्स है। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स आर लिमिटेड रिसोर्सेज, दे आर लिमिटेड, बट एनर्जी कंजम्पशन जब तक अर्थ पे लाइफ है तब तक एनर्जी कंजम्पशन होता है, बट कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो उनको हम ज़्यादा समय तक यूज कर ले तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे टाइप का एनर्जी रिसोर्सेज यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो दूसरे टाइप का एनर्जी रिसोर्सेज कौन सा होगा, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि इसमें कौन सी एनर्जी जो है वो रिन्यू हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती है, बिकॉज कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आर इन लिमिटेड स्टॉक, सो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, नॉन renewable, while the non-conventional energy resources are renewable. ओके, ध्यान से देखना। अब आज की डेट में अगर हम बात करें ना भाई, तो समझ लो यहाँ पे जब हद्दोजहद हो रही है हर जगह पे, अगर सबसे ज़्यादा फोकस हम हो रहे हैं, इफ़ वी आर फोकसिंग टूवर्ड्स द वेरियस टाइप ऑफ चैलेंजेस, then I think
In these two terms, conventional and non-conventional, a very fixed term can fight against the challenges of energy consumption, and that is the non-conventional energy resources, because these energy resources are renewable, and meaning of renewable says that can renew the energy resources. It means energy resources are not limited in this case. That's why a nation, a successful nation is trying to focus towards the renewable energy resources. If we talk about the example for the renewable energy resources, then the renewable energy resources may be like the solar energy, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में 700 मेगावाट का सोलर प्लांट जो है यही एमपी में इस्टेब्लिश हुआ है। तो उसका मेन मोटिव यही है कि बिकॉज एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहे हैं और हमको मेंटेन करना है कि भाई हमारी जो दायरा है रिसोर्सेज का वो बढ़े। कोल आर इन लिमिटेड स्टॉक, कोल से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, अच्छी बात है, एनर्जी वही होती है। ऐसा नहीं है कि कोल से जो एनर्जी मिलेगी उससे पंखा चलेगा और सोलर से एनर्जी मिलेगी उससे पंखा नहीं चलेगा। तो हमको बेसिकली एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी जो है अगर हमको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से मिलेगा तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जो है 24 घंटे कर सकते हैं। अगर कन्वेंशनल मेथड्स का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसको आप इस तरीके से शेड्यूल में यूज़ कर पाएंगे जो शेड्यूल जो है गवर्नमेंट के थ्रू अलॉट होगा। तो फिर से मैं कहना चाहता हूँ जैसे कि इंट्रोडक्टरी पोर्शन एनर्जी के लिए जैसा कि हम बता रहे हैं, तो एक्चुअली में एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो एनर्जी का सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो कई सारे काम होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन that can be easily handled by the term of energy. If the fan is rotating and you are very comfortable under the fan, then that's behind that the reason is only that the electricity is supplying to that fan. So energy is very important in our life, and if we see this section, then this is a very broad, but we have to focus some points with the help of pie chart, bar chart or pictorial representation. You can write over here some values on the abscissa and some values on the ordinate, and you can see the graph for the present scenario. जैसा कि हम पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ईयर वाइज जो है टाइम बढ़ते जा रहा है, एनर्जी कंजम्पशन उसी हिसाब से बढ़ रहा है, बट रिसोर्सेज क्या हो गए, लिमिटेड हो गए। रिसोर्सेज लिमिटेड हुए तो क्या भी हुआ, खतरा ये हो गया कि एनर्जी कंजम्पशन को हमको कम करना पड़ेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आ जाए कि एनर्जी कंजम्पशन एकदम से ही कम करना पड़ेगा। ओके, बेसिकली अगर हम मान लें कि भाई एनर्जी के साथ अगर कंप्रोमाइज़ करते हैं तो क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होती हैं। आप एक एग्जांपल ले लीजिए। अभी अब एनर्जी की बात हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, इस सब की बात नहीं करते हैं। हम बात अपनी करते हैं, ह्यूमन बीइंग की करते हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो रिक्शा आया, ना कि सबसे पहले फोर व्हीलर आई। ठीक, तो रिक्शे का डिज़ाइन जो है वो बेसिक डिज़ाइन था, और उसी डिज़ाइन पे सारी चीज़ें आज की डेट में, उसी कॉन्सेप्ट पे सारी चीज़ें वो मॉडिफाइड हो गई। मॉडिफाइड क्यों हुई, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स बढ़ने लगी, कस्टमर की डिमांड बढ़ने लगी। आप पहले हो सकता है पहले सिंपल पेन से लिखते हो, अब हो सकता है 100 रुपये वाली पार्कर पेन से लिखते हो, तो आप चाहने लगे कि हम क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, तो क्वालिटी बढ़ाने के साथ साथ क्या हो गया, आपकी डिमांड बढ़ गई और फाइनली आप चाहे कि नहीं हमको ये 50 रुपये वाली पेन चाहिए। ठीक, तो जैसे जैसे टाइम हुआ वैसे वैसे क्वालिटी कंट्रोल का क्या हुआ, इवोल्यूशन हो गया, या क्वालिटी कंट्रोल टर्म आ गया। बट दिस क्लास इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट, बट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी की क्वालिटी की बात तो करेंगे ही। तो फिर क्या हुआ, हम आपसे ये कह रहे थे कि अभी हम रिसोर्सेज की बात नहीं करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं।
सपोज दैट एक मैन है, वो साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चला रहा है तो साइकिल ऑपरेट करने वालों को क्या भी चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, कैलोरी चाहिए। अगर वो एनर्जी उसको नहीं मिलेगी तो वो 2 दिन 3 दिन तक साइकिल चलाएगा, 3 दिन के बाद क्या होगा, साइकिल नहीं चला पाएगा और वो अपने काम से नहीं जा पाएगा और उसके कई सारे मोटिव्स वहीं के वहीं फेल हो जाएंगे। तो एनर्जी का सिग्निफिकेंस तो है ही ना भाई। ठीक, तो अब एनर्जी की अगर हम बात करें, अब मान लो थोड़ा सा साइकिल से हम बाइक पे आते हैं, तो बाइक पे आते हैं तो बाइक में तेल डलाते हो, तेल डलाते हो तो फिर क्या होता है, कंबशन होता है फ्यूल का, एयर फ्यूल मिक्सचर का क्या होता है, कंबशन होता है, और उससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होता है तो क्या भी होता है भाई, अंदर का जो पिस्टन होता है, पिस्टन से क्या भी अटैच होता है, क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, ये सारे अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं। तो लीनियर मोशन क्या होता है, फाइनली रोटरी मोशन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो क्या भी होता है, थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इस तरीके से हमको क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, बट पेट्रोल तो लिमिटेड स्टॉक में है ना, है कि नहीं। तो अगर हमको एनर्जी मेंटेन रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी जिस टाइप के इनपुट से हम यूज़ कर रहे हैं वो एनर्जी क्या भी होना चाहिए, वो एनर्जी लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या बात कर रहे हैं, अगर हम पहले विद द हेल्प ऑफ फ्यूल, विद द हेल्प ऑफ फ्यूल बाइक ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए कि फ्यूल जो है लिमिटेड में है। तो अब हम क्या करेंगे, सोलर एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम एक जगह से दूसरे जगह पे कम समय में हो जाए। हो सकता है वो स्पीड ना मिले, तो हम किस तरफ भगे, हम भगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ। अब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ बने, सोलर एनर्जी का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इस पर इफेक्ट कहाँ पे आएगा, इकोनॉमी, पॉलिटिकल। अगर हम बात करें तो कई सारे सेक्शंस हैं जिसमें इश्यूज आते हैं फॉर द एनर्जी। पॉलिटिकल इशू भी आता है, इकोनॉमिकल इशू भी आता है, किसमें, एनर्जी के लिए। इकोनॉमिकल इशू ये हुआ कि भाई अब कहीं महंगाई बढ़ रही है तो तेल का दाम बढ़ गया, तो उससे अफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, एनर्जी कंजम्पशन पे। तो इसमें कई सारे रिसर्चेस चल रहे हैं जिसके बिहाफ पे हम सिग्निफिकेंस और अच्छे से समझ सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की क्या सिग्निफिकेंट हैं। ठीक, और जैसा कि कल हम आपसे बताए थे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, I want to ask you that what is the significance of electromagnetic energy? You know the electromagnetic is made up by the two terms electric as well as magnet. Then what happen, these term combines in each other, electric as well as magnetic, and electromagnetic energy resources are used in the storage devices. Okay, storage devices, स्टोरेज डिवाइसेस में इसका यूज होने से क्या होता है, हमको आउटपुट में इस तरीके की एनर्जी मिल जाती है जिससे कि हमारा मोटिव पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आज के टर्म में हम यही कहेंगे कि आपको क्या भी करना है, आपको सबसे पहले तो अपने सब्जेक्ट को देखना है, बिकॉज वी आर कवरिंग सम इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। So that's why we are covering some of the basic concept of energy, because your subject is energy science, sorry, energy science and engineering.
already told you that what is the definition of energy and what is the definition of science. You are the student of science, so already you know कि साइंस क्या होता है. एक वेल अरेंज्ड एक स्टडी होती है, वेल सिस्टमेटिक स्टडी होती है जिसमें हम फैक्ट्स के अलावा जो है कई सारे नेचुरल फिनोमिनन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं. ठीक. तो क्या होता है भाई, फिजिक्स का यूज़ करते हैं हम किसको समझने के लिए, एनर्जी को समझने के लिए. ठीक. नेचर और नेचुरल फिनोमिनन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं. और उसमें उस फिजिक्स में एक फिजिकल क्वांटिटी आती है, दैट इज द एनर्जी. तो अगर फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन ही यही हो सकती है कि जिस क्वांटिटी का हम मेजरमेंट कर सकते हैं. तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं तो एनर्जी का भी मेजरमेंट कर सकते हैं. अब भाई हम कह रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं तो एनर्जी का भी मेजरमेंट कर सकते हैं. इसका मतलब एनर्जी की भी कुछ ना कुछ यूनिट होगी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है. तो एनर्जी की क्या यूनिट होती है, ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस. एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल, किलो जूल, अर्ग एटसेट्रा. यूनिट्स की बात कर चुके हैं, स्केलिंग की बात कर चुके हैं, प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर चुके हैं, सिग्निफिकेंस की बात कर चुके हैं. आई थिंक कि इंट्रोडक्टरी पोर्शन में इतना सफिशिएंट है. आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भी आज के समय में हम बात करते हैं तो कैपेसिटी वर्ड की बात करते हैं, और एनर्जी में किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी को ही मेजर किया जाता है. ठीक. तो आई थिंक कि सारे लोग ये चीज़ समझ रहे हैं कि एनर्जी जो है वो क्या होता है, वर्क ही होता है. उस वर्क करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं. okay? If we talk about the work, and already discussed that the work is the scalar quantity. And why work is the scalar quantity? Because the work done is the dot product of force vector as well as displacement vector. And dot product always gives the scalar quantity. That's why the work done is the scalar quantity. That's why energy is the scalar quantity. And having some units. एंड मैं ये भी बता चुका हूँ कि W=JQ होता है, जिसमें कि क्या होता है, वर्क और हीट का एक रिलेशन मिल जाता है. ठीक. हीट का फ्लो होता है, जहाँ पे हीट का फ्लो होता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, वहाँ पे हॉट टेम्परेचर, हॉट सरफेस टू कोल्ड सरफेस, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लो को क्या कहते हैं, हीट फ्लो कहते हैं. ठीक. टेम्परेचर और हीट सेम चीज़ें नहीं है, और हीट कह सकते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ठीक है. तो इस तरीके से कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, जीरोथ लॉ क्या होता है, रैंकाइन साइकिल क्या होता है, और स्टीम पावर साइकिल क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, और कई सारे एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, और कई सारे एनर्जी के टर्म्स कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में कैसे काम करते हैं, और उसका लिटरली फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे. ओके, थैंक यू फॉर द वीडियो ज्वाइनिंग द सेशन. ओके, थैंक यू.